differential calculus. So in last chapter we have given the certain formulas, and now we'll have a new chapter. The name of the chapter is Motion on a Straight Line. Now first we will consider the differential calculus. Now what is the differential? There are two types of calculus. One is the differential calculus and another is integral calculus. So first of all we will discuss the differential calculus. तो सबसे पहले अपन जो differential calculus को अपन करते हैं. तो differential में what is the derivative? Derivative or differential are one and the same thing. Derivative is rate at which a function changes with respect to some variable. Now what do you mean by the function? Suppose function is fx. Fx is a function. Now fx can be x square plus 3x. Fx can be log of x. Fx can be exponential of x. Fx can be sin x. It can be cos x. It can be tan x. So there are many type of functions which are dependent on x. So x is the variable. If x will vary, the function will vary. So derivative will be the d beta dx of the function. So this function is with the function of x, means it depends upon x, and we divide by dx. So this is known as the derivative or differential of function fx with respect to x. So to understand this, we will discuss the thing. Suppose we are having a function y is equal to fx. So we can plot a graph between y and x. Suppose this is the x-axis, this is the y-axis, and we have taken the y is equal to fx, and the curve for this function y is equal to fx is this curve. Start here. We consider 2 points on the curve. One point is P, another point is Q. The coordinate of P are x and y, means this is the origin, this distance will be x, and the vertical difference, this will be y. Then when x changes to x plus dx, this value will be x plus dx. Now x changes from x to x plus dx, then the value of y will also change. So the value of, so you write x plus delta x. Delta x is a small change in x. Then y will change. Then at this, when coordinate was x, the value of y. When it is x plus dx, the coordinate is y plus dy, and this point shifted to 2 points. So if we join P and Q, that is straight line, then what will the slope? Slope of the curve. Slope will be tan theta. So if we put it here, this angle is theta with the x-axis, then tan theta will be equal to, this angle will be also theta. So what will be tan theta? Tan theta is perpendicular but base. So perpendicular is BC. Base is AC. Now what is BC? BC, this is y plus dy, delta y. This is y. So BC will be equal to y plus delta y minus y, or that will be equal to delta y. Now what will be the AC?
AC will be equal to x plus delta x minus x. This is x plus delta x minus x. So it will be AC will be equal to, so this is equal to delta x. So the change of y with respect to x, so the rate of change will be tan theta will be equal to delta y bata delta x. So this will be the tan theta, or we can say this is the slope. So now m is equal to tan theta is equal to delta y. So we can write delta y as function when changes from x plus delta x minus initial function x. So this is f x plus delta x. This value of this will be equal to y delta plus y. Fx, when it is x, its value as well as y. So it will be delta y divided by delta x. So this will be the change in function with respect to change in x. So variable is x. The change in function for the x is fx plus delta x minus fx divided by delta. So this will be the rate of change of function y with respect to x. So this will be the average change. This will be the average change, and that will equal to delta y bata delta x. Now if I shift q towards p, if I set this point q towards p, it means what we are doing? We are reducing x. Delta x is decreasing. When this point shift here, and as p shift, q shift to p point, then delta x tends to 0. And this is the condition. Here the point q was here, now it is shifted to this point. Now it will be only one point, and this is your x. So what will be here? We will write limit delta y bata delta x tends to 0. Then this will be touch the point P at this point, and we draw a tangent to it. Then this tangent will make an angle theta. Then this will be equal to tan theta. This theta and this theta is different. This theta and this theta is not same. So tan theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी? And this will be written as dy bata dx. So derivative will be dy bata dx, or differential of y with respect to x is known as derivative. So derivative will be dy bata dx. I once again explain you in Hindi. Suppose we are having a function y is equal to fx, means the value of y की मान जो है वो x के मान के ऊपर निर्भर करता है. x fx कुछ भी हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x स्क्वायर प्लस x क्यूब होता है. कोई भी राशि हो सकती है जो कि x पर निर्भर कर रही है. तो इसका जो स्लोप होगा, सो यदि अपन को जो है इसको अपन प्लॉट करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, x और y एक्सिस जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो ये सपोज कर्व y इज इक्वल टू fx, ये कर्व है. और ये कर्व के अंदर अपन ने जो दो पॉइंट अपने लिए हैं, p पॉइंट और q पॉइंट. p के कोऑर्डिनेट x है और y है. q के कोऑर्डिनेट जो है वह x प्लस डी एक्स, ये x प्लस डी एक्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा y प्लस डी वाई. तो यहाँ से अपन एक ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा.
तो अब बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, बी सी वाई प्लस डी वाई माइनस वाई, एंड ए सी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स डेल्टा एक्स। तो ये जो क्या हुआ, ये आपका जो वैल्यू है ये डेल्टा एक्स होगी, ये डेल्टा वाई होगी। यदि यह जो लाइन है जो पी और सी को मिलाने वाली, पी और क्यू को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है वह थीटा एंगल बनाती है, तो यह एंगल थीटा बराबर होगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। सो टेन थीटा जो डेल्टा वाई, इसको अपन एम स्लोप बोल सकते हैं। सो एम इज इक्वल टू टेन थीटा बराबर डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई जो है वह एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ वाई है, क्योंकि एफ एक्स प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। सो ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स को अपने सबसेट घटा दिया और डेल्टा एक्स का दिए भाग देते हैं तो स्लोप आ जाएगा। सो आपका डेल्टा एक्स क्या है, आपका ए सी के बराबर है, और डेल्टा वाई क्या है, पी सी के बराबर है। तो ये आपका आ गया। तो टेन थीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये जो है वह डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, ये एवरेज चेंज कहलाएगा, एवरेज चेंज ऑफ वाई और या एवरेज चेंज ऑफ फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। नाउ यदि अपन जो है पी पॉइंट को अपन शिफ्ट करें, धीरे 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 शिफ्ट करते जाए, यदि धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, वाई की वैल्यू भी कम होती जाएगी। और यदि इस पॉइंट पर आ जाए, पी पॉइंट पर आ जाए, ये यहाँ पर पी पॉइंट पर आ गए अपन, तो इस पी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वह जीरो के करीब होगी। तो वी विल से यदि अपन क्यू को शिफ्ट करें पी की ओर, क्यू को अपन शिफ्ट करें पी की ओर, तो क्या होगा, डेल्टा एक्स का मान घटता जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर डेल्टा एक्स विल टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, एग्जैक्टली जीरो तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इट टेंड्स टू जीरो, देन इफ वी टेक द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, this will be equal to tan theta and it is written as dy bata dx. So dy bata dx is derivative of y function with respect to x, or we can say it is a differential of y with respect to x. That is at the point this. So this will be the instant. Here it was the average value. Now it is the instantaneous value. Intensity value means the value at a particular point. Here the average value delta y bata delta x was average value between P and Q point. Now instantaneous value is at any instant, at any place or at any time. तो ये जो है वो कहाँ होगा कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होने को होगी, then it will Q will shift to P point and at this point this will be the tangent and theta is angle, then tan theta will be equal to limit delta x tends to 0, delta y बटा delta x is equal to dy बटा dx, जो कि डिफरेंशियल होगा फंक्शन का x के सापेक्ष, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, जबकि डेल्टा y बटा डेल्टा x जो है वह एवरेज वैल्यू होगी। यदि हम जो है दो फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन u है जो भी x पर निर्भर कर रहा है, दूसरा फंक्शन v है वो भी x पर निर्भर करता है, यानी यदि x का मान बदलेगा तो u का मान भी बदलेगा, v का मान बढ़ेगा, और दोनों इंडिपेंडेंट है। ये नहीं जितना x बदलेगा उतना ही y बदलेगा, v बदलेगा नहीं, x अलग फंक्शन है, y अलग फंक्शन है,
दोनों x पर निर्भर कर रहे हैं, वेरिएबल x है तो u और v की वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ पर अपन स्मॉल a एंड स्मॉल b कांस्टेंट क्वांटिटी लेंगे जो कि x पर निर्भर नहीं करेगी। a और b जस्ट कांस्टेंट होगा, जैसे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 एनी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। और जबकि u और v की वैल्यू जो है x पर निर्भर करेगी। अब अपन डिफरेंशियल निकाले। सपोज ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे अपना a है कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट क्वांटिटी में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, x बदलेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डिफरेंसेस ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0। कांस्टेंट क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, कोई वेरिएबल नहीं होगा। यदि x चेंज होगा, u चेंज होगा, v चेंज होगा, बट a और b चेंज नहीं होगा। सो differentiation of any constant quantity will be equal to 0. Now second, differentiation of a function which is multiple of a constant. यदि आपका फंक्शन u है जो कि x का फंक्शन है और ये a कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो है a कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू डी यू जो कि x का फंक्शन है बटा डी एक्स। यदि v का होता तो क्या होता, जैसे d बटा डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट a इंटू वी, ये बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू डी वी बटा डी एक्स। यहाँ पर v x का फंक्शन है। नाउ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सपोज आपके दो वेक्टर हैं, वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। u जो है वो x का फंक्शन है, v का x का फंक्शन है, इसके साथ कांस्टेंट a है, इसके कांस्टेंट b है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, दोनों का प्लस और माइनस का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस माइनस कर दो, फिर इसका, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a इंटू डी यू बटा डी एक्स जो कि x का फंक्शन है, प्लस होता है प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, b इंटू डी वी जो कि x का फंक्शन है बटा डी एक्स। तो आपके यदि सम में हो या डिफरेंस में हो, सम हो तो सब रखना है, डिफरेंस हो तो डिफरेंस रखना है। इस प्रकार अपन जो है वह डिफरेंशियल लिख सकते हैं। यदि जो है वह फंक्शन जो है प्रोडक्ट हो, एक दूसरे का प्रोडक्ट हो, यानी u इंटू वी, यू भी एक्स का फंक्शन है, v का एक्स का प्रोडक्ट में है, तो अपन क्या करेंगे कि a को कांस्टेंट रख करके दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस दूसरे को रख करके और पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बटा डी एक्स। एक फंक्शन को रख दिया, पहले फंक्शन को u का u के और रख दिया, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर पहले फंक्शन का u के और रख दिया सेकंड को और पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये जो है वह टोटल डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब चेन रिलेशन का मतलब क्या है कि यदि एक क्वांटिटी जो है आपके पास में डी वाई बटा डी एक्स निकलना है, वाई आपका u का फंक्शन है, तो आप इसको क्या लिखोगे, डी यू डी वाई बटा डी यू इंटू डी यू का डी एक्स के साथ करो, तो ये डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह से यदि जो है डी यदि दो का तीन के फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी वाई बटा डी यू इंटू डी यू बटा डी वी इंटू डी वी बटा डी एक्स। तो यदि आपका जो है वह y जो है वह u का फंक्शन है, u यहाँ पर y u जो है कोई भी वेरिएबल है, यहाँ पर जो है फंक्शन नहीं ले रहा है, वेरिएबल है, और u जो है वह v के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो डी यू बटा डी एक्स इंटू डी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यू कैंसिल हो जाएंगे, डी वी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। तो इस प्रकार अपन जो है
वह चेन रिएक्शन के अंदर भी अपन जो लिख सकते हैं, चेन रूल में जो है वह डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन u के साथ में, u का डिफरेंशिएशन x के साथ में। इसी तरह से यदि y का जो dx है निकालना है अपन को, जबकि y और x जो है वह v और u के फंक्शन में है, तो dy बटा du इंटू du बटा dv इंटू dv बटा dx, यहाँ पे भी ये u कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली dy बटा dx की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ नेक्स्ट टाइप इज डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में जो कि पावर में आ जाएगा। सो यदि आपका x का पावर n है, तो यहाँ पर fx क्या हो गया, fx इज इक्वल टू x का पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ d बटा dx, x का पावर n बराबर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। जो भी है n है वो n को याद रख दो और x का पावर n में सेव कर दो। जैसे आपका d बटा dx ऑफ x, तो x का पावर क्या है पर 1, तो बराबर n की जगह आएगा 1, x का मान 1 माइनस 1 0 और एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 1 आ जाएगी, dx बटा dx 1 आ जाएगा। इसी तरह से d बटा dx ऑफ x का पावर 4 कितना हो जाएगा, बराबर n कितना है 4, x का पावर 4 में से घटा दो 3, क्या जाएगा। यदि आपका d बटा dx निकालना है आपको, a इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक बार आ जाएगा और x का कितना हो गया 1 अभी निकाल लिया अपन ने। इसी तरह से d बटा dx ऑफ b इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, b को आप बाहर निकाल दो और एक्स क्यूब कितना होगा 3 इंटू एक्स का पावर 3 में से 1 गया 2, तो बराबर 18x स्क्वायर। तो अपन आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बटा x, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज d बटा dx ऑफ x का पावर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बराबर n माइनस 1 x का पावर माइनस 1 बराबर माइनस 1 बटा x स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी। यदि आपका d बटा dx आपको निकालना है 1 बटा अंडर रूट एक्स बराबर d बटा dx अंडर रूट एक्स को क्या लिखते हो, x का पावर हाफ बराबर क्या होगा n इज इक्वल टू हाफ, x का पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा x 2 इंटू अंडर रूट एक्स। यदि आपका d बटा dx अंडर रूट एक्स है बराबर क्या हो जाएगा, d बटा dx x का पावर हाफ बराबर क्या होगा 1/2 x इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस हाफ 1, सो इट इज इक्वल टू 1 बटा 2 अंडर रूट एक्स। ये यहाँ पर कर दो, ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ, तो इट विल बी इक्वल टू बटा 2 एक्स का मान 3/2, so x अंडर रूट एक्स। सो वंस आई अगेन एक्सप्लेन दिस कि यदि आपका पॉलिनोमियल में है, यदि d बटा डी एक्स का पावर n निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा, जो भी पावर है उसको याद रख दो और पावर का x में 1 घटा दो, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा। यदि आपको d बटा x का निकालना है तो कितना हो जाएगा, x पावर कितना है 1, x 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यदि आपको d बटा डी एक्स का पावर 4 है
तो क्या होगा n कितना हो गया 4, 4 आ गया, x का पावर 4 में से 1 गया 3, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो d बटा डी एक्स यदि आपका a इंटू एक्स है, एक कांस्टेंट को पहले मान ले लो आप, a इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से d बटा डी एक्स ऑफ b एक्स क्यूब है, तो b बार आ जाएगा, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, n आ गया 3, एक्स का पावर 3 में से 1 गया 2, तो 3x स्क्वायर हो गया। सो इट विल बी इक्वल टू 18x स्क्वायर। यदि d बटा डी एक्स हमको 1 बटा एक्स निकालना है, तो इसको क्या लिखते हैं, d बटा एक्स का पावर -1, तो कितना हो जाएगा, n कितना हो गया -1, x -1 तो -2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1 बटा एक्स स्क्वायर। यदि d बटा डी एक्स ऑफ 1 बटा √x, तो d बटा डी एक्स √2 क्या लिखेंगे, x के पावर -हाफ, सो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1/2, x का पावर -1/2 -1, so it will be equal to -1/2 x रूट x, x के पावर 3/2 है, माइनस में x √x लिख सकते हैं। इसी तरह से d बटा डी एक्स ऑफ √x है, तो कितना हो गया, d बटा x, x का पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा, हाफ को मान ले लिया, n 1/2 x 1/2 -1, तो कितना हो गया -हाफ, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 × √x। तो ये वैल्यू जो है वो अपन निकाल